الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وقال عز وجل في مقام آخر ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر. رواہ الترمذی. حاضرین جمعہ، معزز سامعین کرام، پردے کی آڑ میں بیٹھی ہوئی اسلامی خواتین، تمام قسم کی تعریف توصیف، بڑائی کبریائی بزرگی سب اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ہمارا خالق ہے، مالک، مربی اور پالنہار ہے. درود و سلام نازل ہوں تمام نبیوں پر، خصوصاً بالخصوص ہمارے آخری پیغمبر جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. حاضرین جمعہ، آج کے اس خطبہ جمعہ میں جس موضوع پر کچھ باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، جس موضوع پر کچھ باتیں آپ کے گوشے گزار اور آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، وہ موضوع ہے نماز چھوڑنے کے نقصانات. اس سے پہلے خطبہ جمعہ میں آپ نے سماعت کیا کہ نماز پڑھنے کا فائدہ کیا ہے، فجر کے خزانے اور صبح کی برکتیں، اس کے تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے کی گئی تھیں. آج کا جو خطبہ ہے وہ نماز چھوڑنے کا نقصانات کیا ہے. دنیا کے اندر اگر ہم نماز چھوڑ رہے ہیں تو دنیا کے اندر ہمیں کیا نقصان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اور آخرت کے اندر ہمیں کس دور سے گزرنا پڑ سکتا ہے. انشاءاللہ یہ ساری باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین تو ہمیں حق بات کہنے کی، قرآن و حدیث کے مطابق بات کرنے کی، اور ہم تمام لوگوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین اللہم تقبل یا رب العالمین. حضرات گرامی، آج کے اس خطبہ جمعہ میں میں آپ کے سامنے ایک انتہائی خطرناک گناہ کے بارے میں اور اس کے برے انجام کے بارے میں کچھ باتیں رکھوں. کلمہ پڑھنے کے بعد
ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार करने के बाद अगर आदमी नमाज को छोड़ता है, नमाज को तर्क करता है, तो उसका इस्लाम से रिश्ता खत्म हो जाता है। ईमान का जो रिश्ता है वो बहुत कमज़ोर हो जाता है। और ये गुनाह जो है, नमाज का तर्क करना, नमाज से गफलत और सुस्ती बरतना, ये बीमारी हमारे मुआशरे के अंदर बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है और ये बीमारी रुकने का नाम नहीं ले रही है। हमारे मुआशरे के अंदर आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो कलमे तौहीद, कलमे शहादत का इकरार करते हैं, अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान है, अपने आप को मुवहिद कहने का दावा करते हैं, लेकिन अफसोस ये है कि वो हजरात नमाज को तर्क कर देते, नमाज से दूर हैं जो हजरात अपने आप को मुवहिद होने का दावा करते हैं। हजरात गिरामी, हमारे मुआशरे के अंदर अगर एक आदमी किसी को कत्ल कर दे तो दुनिया उसको कातिल कहती है, दुनिया उसको नफरत की निगाह से देखती है। हमारे मुआशरे का अगर कोई आदमी शराब पी ले तो उसको शराबी के लक़ब से मुलक़्क़ब किया जाता है। लोग उसको इज्जत की निगाह से नहीं देखते, अपने पास उसको बैठाना गवारा नहीं करते। एक आदमी अगर जिना कर ले, जिना का सुदूर अगर उससे हो जाए तो दुनिया उसको जलील कहती है, उससे आदमी बात करना गवारा नहीं कर सकता। अगर एक आदमी चोरी करे तो लोग उसके यहाँ आना जाना बंद कर देते हैं, उसको अपने यहाँ आने नहीं देते। हमने चोर को चोर समझा, हमने उसको एक गुनहगार समझा, जानी को हमने मुजरिम जाना, कातिल को हमने कातिल से गर्दाना और हमने उसको मुजरिम समझा, लेकिन एक नमाजी को हमने गुनहगार नहीं समझा। यही वजह है कि आज हमारे मुआशरे के अंदर बेनमाजियों की तादाद बढ़ रही है। काश कि अगर हमने उसको भी अगर गुनहगार अगर समझा होता तो ये बुराई जो बढ़ रही है, जो नमाजियों की, बेनमाजियों की तादाद जो बढ़ रही है, इस पर रोक और थाम हो जाता। हजरात गिरामी, ये नमाज का तर्क कर देना जिना करने से बड़ा गुनाह है, चोरी करने से बड़ा गुनाह है, कत्ल कर देने से बड़ा गुनाह है, शराब पीने से बड़ा गुनाह है। अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह की किताब किताबुस सलात के अंदर उन्होंने नकल किया कि ला यख्तलिफूनल मुस्लिमूना अन्ना तर्कस सलातिल मफरूज़ा अमदन मिन आज़मिज़ ज़ुनूब व अकबरिल कबाइर। कहा कि नमाज को तर्क कर देना, नमाज को छोड़ देना, ये अल्लाह की निगाह में सबसे बड़ा गुनाह है। मिन आज़मिज़ ज़ुनूब व अकबरिल कबाइर, सबसे बड़ा गुनाह है। फरमाया कि अल्लाह के नजदीक ये नमाज का छोड़ना, नमाज का तर्क कर देना, ये कत्ल करने से बड़ा गुनाह है, मिन कत्ल नफ्स। और फरमाया व अख्ज़िल अमवाल, चोरी करने से बड़ा गुनाह है। वह इसमें जिना, और जिना करने से, व शुर्बिल खम्र, और शराब पीने से बड़ा गुनाह है। हमारे मुआशरे के अंदर आप देखेंगे कि एक आदमी अपनी बेटी की शादी जब करता है तो एक जानी के साथ नहीं करता, एक चोर के साथ नहीं करता, एक बदकिरदार और बदइखलाक के साथ नहीं करता, लेकिन वही आदमी अपनी बेटी की शादी बड़े धड़ल्ले के साथ और बगैर किसी हिचकिचाहट के साथ क्या है, अपनी बेटी की शादी क्या है, बेनमाजी के साथ कर देता है। हजरत गिरामी, ये नमाज का तर्क करना बहुत बड़ा गुनाह है। आप अहद रिसालत का मुताला करेंगे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़माने का आप मुताला करेंगे, सहाबे कराम की ज़िंदगी को आप देखेंगे, ताबईन के दौर के आप पढ़ेंगे तो कुरूने ऊला को आप पूरा पढ़ डालिए, एक वाक़या भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि किसी सहाबी ने क्या है, नमाज को तर्क कर दिया हो। एक वाक़या भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि किसी सहाबी ने नमाज को तर्क कर दिया हो, नमाज को छोड़ दिया हो। आपको बहुत सारे वाक़े ऐसे मिलेंगे कि शैतान के बहकावे में आकर के किसी सहाबी ने क्या है, जिना कर लिया,
चोरी कर लिया, शराब पी लिया, लेकिन तौबा किया उन्होंने और अल्लाह तबारक ताला ने उनकी तौबा को कबूल किया। इस तरह के वाकयात मिलेंगे, लेकिन आपको यह वाकया कहीं नहीं मिलेगा कि किसी सहाबी ने कलमा पढ़ने का दावा किया हो, अपने आप को मुसलमान बनने का दावा किया हो और उसने क्या है नमाज को छोड़ दिया हो। पूरी तारीख का मुताला कर डालिए, किसी सहाबी से आपको यह नहीं मिलेगा कि किसी सहाबी ने नमाज को छोड़ दिया हो। यही वजह है कि मुनाफिकीन जो इस्लाम के दुश्मन थे, इस्लाम का लिबादा ओढ़ करके उनकी जुबान पर इस्लाम से मोहब्बत और दिलों के अंदर इस्लाम के खिलाफ बुग़्ज़ था, ये वो गिरोह और ये वो जमात थी जो इस्लाम की दीवार को, इस्लाम की बुनियाद को खोखला करना चाहती थी, इस्लाम को जड़ से मिटाना चाहती थी। ये मुनाफिकीन ना चाहते हुए भी उस जमाने में मस्जिद में आते थे नमाज पढ़ने के लिए, जो इस्लाम के सख्त तरीन दुश्मन थे। सहाबे किराम को देखते थे कि अगर हम नमाज पढ़ने नहीं जाएंगे तो इनकी जमात से हम खारिज हो जाएंगे, इसलिए क्या है वो भी नमाज पढ़ने के लिए आते थे। हजरात गिरामी, कुरान करीम का ये दो टोक फैसला है कि वो आदमी जो नमाज नहीं पढ़ता, नमाज को तर्क कर देता है, नमाज को छोड़ देता, नमाज से सुस्ती और गफलत बरतता है, ऐसे इंसान के लिए वैल है। और वैल ये जहन्नम के अंदर एक वादी का नाम है। ऐसे लोगों को उस जहन्नम की वादी के अंदर रखा जाएगा। कुरान करीम ने बड़ी सराहत के साथ इस लफ्ज़ को वाज़े किया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह माउन के अंदर इरशाद फरमाया, फ़वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, कहा हलाकत हो, बर्बादी हो, तबाही हो ऐसे लोगों के लिए, ऐसे नमाजियों के लिए। वो कौन नमाज पढ़ते हैं, फिर ऐसे लोगों के लिए क्यों तबाही है। फ़वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, उन नमाजियों के लिए हलाकत है, बर्बादी है जो नमाज से गफलत करते हैं, नमाज पढ़ते हैं। जरा तसव्वुर कीजिए कि एक आदमी नमाज पढ़ता है, उसके लिए बर्बादी है, उसके लिए हलाकत है, और जो सिरे से नमाज नहीं पढ़ता उसका क़यामत के दिन उसका हश्र क्या होगा, हम और आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। हज़रात गिरामी, इस आयत के अंदर उलमाए किराम ने लिखा कि सुस्ती करने का मतलब यह है कि आदमी नमाज को वक्त पर ना पढ़े। फजर की नमाज को सूरज निकलने के बाद, ज़ोहर की नमाज को असर में और दीगर नमाजों को ताख़ीर के साथ पढ़े, तो ऐसे लोगों के लिए क्या है, हलाकत है। और दूसरा माना इसका ये कि आदमी नमाज पढ़े लेकिन नमाज के अंदर खुशू और खुजू ना हो। हम नमाज यहाँ पढ़ रहे हैं, हमारा दिल काम में लगा हुआ है, वो जो काम छोड़ करके, जो बिजनेस जो छोड़ करके आए हैं नमाज पढ़ने के लिए, हमारा दिल उसमें लगा हुआ है। अगर हमारे दिल के अंदर ये है तो क़यामत के दिन ये नमाज हमारी और आपके मुंह पर मार दिया जाएगा और क्या है, वैल के हवाले कर दिया जाएगा। तो हज़रात गिरामी, ऐसे लोगों के लिए तबाही और बर्बादी है जो लोग क्या है नमाज को तर्क कर देते और नमाज में क्या है सुस्ती बरतते, नमाज पढ़ने से वो क्या है काहिली बरतते हैं और नमाज के अंदर उनके खुशू और खुजू नहीं होती। ये चंद तमहीदी बातें आपके सामने। अब आइए आपके सामने कुछ वो बातें करूं जो असल मौजू है, नमाज के नुकसानात क्या हैं। हम जानते हैं कि नमाज के पढ़ने से, चाहे वो नफली नमाज हो, चाहे वो सुनन हो, चाहे वो फ़राइज़ हो, कोई भी नमाज हो, अगर हम नमाज की अदायगी करते हैं तो अल्लाह तबारक ताला उस नमाज के ज़रिए से हमारी ख़ताओं को मिटाता है, हमारे गुनाहों को मिटा देता है। लेकिन जो आदमी नमाज ही ना पढ़े, नमाज से दूर रहे, यकीनन उसकी ज़िंदगी क्या है गुनाहों से शराबोर रहेगी और धीरे धीरे वो गुनाह पहाड़ का शक्ल इख्तियार कर लेंगे और कल क़यामत के दिन आदमी उस गुनाह को देख करके परेशान हो जाएगा। तो नमाज ना पढ़ने का, नमाज से दूर रहने का जो पहला जो नुकसान है, वो नुकसान है इंसान की ज़िंदगी से चैन और सुकून ख़त्म हो जाती है। ये पहला नुकसान है। नमाज ना पढ़ने का जो पहला जो नुकसान है वो ये कि इंसान की ज़िंदगी से चैन और सुकून ख़त्म हो जाती है और बरकत रूठ जाती है। हज़रात गिरामी, वो इंसान
जो नमाज से दूर हो, नमाज ना पढ़ता हो, ऐसे इंसान की जिंदगी बदमजा होती है, रूहानी तौर पर वो मर चुका होता है। मालो दौलत की कसरत, आलो औलाद की कसरत, वसाइल और ज़राए की कमी, वसाइल और ज़राए की कसरत होने के बावजूद भी वो आदमी जो नमाज से दूर रहता है, नमाज से सुस्ती बरतता है, वो इंसान अजीबो गरीब किस्म की बेचैनी में मुब्तला रहता है। अजीबो गरीब किस्म की बेचैनी उसको क्या है, घेरे रहती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया, फ़ख़लफ़ मिन बादिहिम ख़ल्फ़ुन अदाउस सलात वअतबउश शहवात फ़सौफ़ यल्क़ौना गय्या। फरमाया कि उनके बाद उनकी नाकारा औलाद उनकी जानिशीन बनी, जिन्होंने नमाज को ज़ाया कर दिया, नमाज को छोड़ दिया। वअतबउश शहवा, और फरमाया कि शहवत के पीछे भागे, माल की शहवत, आल औलाद की शहवत, दुनिया की शहवत, औरत की शहवत, इन तमाम चीजों के पीछे वो भागे। और कहा फसौफ यल्क़ौना गय्या, अन करीब वो अपनी इस गुमराही का अंजाम देख लेंगे। हजरत गिरामी, वो आदमी जिसके पास माल और दौलत की कमी नहीं है, रुपए पैसे की कमी नहीं है, सब कुछ है, चैन और सुकून पहुंचाने का हर चीज मौजूद है, लेकिन वो दौलत किस काम का, वो रुपया और पैसा किस काम का, वो आल औलाद किस काम के। जो आल औलाद क्या है, हमें सुकून ना पहुंचाए, वो माल और दौलत जो हमें सुकून ना दे। जब रात को हम सोने के लिए जाएं, तो हम जब सोने के लिए बिस्तर पर जाएं, तो हमें जब तक उस वक्त तक नींद ना आए, जब तक क्या है हम एक टेबलेट ना लें, जब तक नींद की गोली हम ना खाएं, हमें नींद ना आए, तो वो दौलत किस काम का। ये जो है कि वो आदमी जिसको नींद ना आए, याद रखिए ये अल्लाह ताला की तरफ से उस शख्स के लिए, उस शख्स पर अल्लाह का अजाब है, अल्लाह रब्बुल आलमीन का कहर है ऐसे लोगों पर। जो आदमी क्या है, इतने सारे प्रॉपर्टी और जायदाद होने के बावजूद भी रात को जब बिस्तर पर जाए तो उसको चैन और सुकून ना आए। हजरत गिरामी, वो आदमी जो नमाज से दूर रहता है, दुनिया के अंदर उसको खसारा उठाना पड़ेगा और आखिरत के अंदर भी उसको खसारा के दौर से गुजरना पड़ेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह व मन यफ़अल ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल ख़ासिरून। क्या ईमान वालो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम, कहीं ऐसा ना हो कि ये तुम्हारी आल औलाद, तुम्हारा ये माल और दौलत तुम्हें अल्लाह के जिक्र से कहीं गाफिल न कर दे। अल्लाह का जिक्र रोजे से, नमाज से और ज़कात से, सदका और खैरात से और लोगों के साथ हुस्न सुलूक करने से कहीं ये माल और दौलत का नशा तुम्हें अल्लाह के जिक्र से दूर न कर दे। वमन यफ़अल ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल ख़ासिरून। और याद रखिए, जो इन चीजों के पीछे भागा और अल्लाह के जिक्र से दूर हुआ, फरमाया कि यही वो लोग हैं जो कयामत के दिन नुकसान उठाएंगे, कयामत के दिन ऐसे लोग खसारा में पड़ेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक दूसरी जगह फरमाया, वमन आरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का व नहशुरुहु यौमल क़ियामा, कि जो लोग हमारे जिक्र से भागते हैं, नमाज से दूर रहते, मस्जिदों के करीब नहीं आते, ऐसे लोगों की जिंदगी को हम तंग कर देते हैं, ऐसे लोगों की जिंदगी से खुशियां रूठ जाती हैं, वो आदमी बरकत से महरूम हो जाता है। तो हजरात गिरामी, नमाज से दूर रहने का, नमाज ना पढ़ने का पहला नुकसान जो है वो ये कि इंसान की जिंदगी से चैन और सुकून खत्म हो जाता है। नमाज ना पढ़ने का दूसरा जो नुकसान है वो ये कि आदमी की रूह जो है वो नापाक हो जाती है। आदमी की रूह नापाक हो जाती है और उसके रूह को ऐसा कैंसर लाहिक होता है कि उसको अल्लाह की इबादत की लज्जत महसूस नहीं होती। इस्लाम की चाशनी से, इस्लाम की रोशनी से वो आदमी महरूम होता है। हजरत गिरामी, हजरत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मसलुल्लज़ी ला यज़कुरु रब्बहु वल्लज़ी मसलुल्लज़ी यज़कुरु रब्बहु वल्लज़ी ला यज़कुरुहु मसलुल हय्य वल मय्यित। फरमाया कि वो आदमी जो अल्लाह को याद करता है और वो आदमी जो अल्लाह को याद नहीं करता, जो याद करता है वो जिंदे की तरह है और जो नहीं याद करता वो मुर्दे की तरह है। वो आदमी जो नमाज नहीं पढ़ता, हकीकत में वो एक चलती फिरती लाश की तरह है। इंसान के अंदर सिर्फ जान है और वो मर चुका रूहानी तौर पर। वो आदमी जो नमाज से क्या दूर रहता है।
तो दूसरा जो नुकसान है वो ये कि आदमी की रूह जो है वो क्या है, नापाक हो जाती है। हजरात गिरामी, इसी तरीके से नमाज ना पढ़ने का जो तीसरा नुकसान है वो ये कि उस पर, वो शख्स जो नमाज नहीं पढ़ता, ऐसे लोगों पर शैतान मुसल्लत हो जाता है। वो घर, जिस घर में नमाज को कायम ना किया जाता हो, उस घर के अंदर शैतानों का बसेरा हो जाता है। वो आदमी जो नमाज ना पढ़ता हो, ऐसे लोगों का साथी शैतान बन जाता है। वो गांव, जिस गांव के अंदर अजान ना दी जाती हो, नमाज ना कायम की जाती हो, तो ऐसे गांव को क्या है, शैतान अपने घेरे में ले लेते हैं। और याद रखिए, जिस शख्स का साथी शैतान बन जाए, कभी भी क्या है, उसको नेकी के रास्ते पर आने नहीं देगा। आज क्या है, बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं कि क्या है, हमारी बच्ची को और हमारे बच्चे को शैतान परेशान कर रहा है। शैतान परेशान क्यों कर रहा है? कभी हमने गौर किया? अरे आप नमाज पढ़िए, अपने घरों के अंदर कुरान की तिलावत करिए, सूरह बकरा पढ़िए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस घर के अंदर सूरह बकरा की तिलावत की जाती है, ऐसे घर में शैतान नहीं रुकता। अगर हमने अपने घरों के अंदर नमाज को कायम किया है, नमाज को हम पढ़ रहे हैं, तो हमने क्या है, शैतान के आने का जो दरवाजा है, हमने उसको बंद कर दिया। और अगर हमने क्या है, नमाज से अगर हमने काहिली की, नमाज से अगर हम दूर भागे, तो याद रखिए, जो शैतान के जो आने का जो दरवाजा है, हमने सारे दरवाजों को खोल दिया है। अब ये शिकायत मत करिए कि क्या है, हमारी बच्ची को और हमारे बच्चे को शैतान परेशान कर रहा है। हजरत अबू दर्रा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, मा मिन सलासतिन फी क़रियतिन वला बदविन ला तुक़ामु फ़ीहिम सलात। फरमाया, जिस गांव के अंदर 3 लोग हों, जिस गांव के अंदर, जिस शहर और जिस सहरा के अंदर सिर्फ और सिर्फ 3 लोग हों और वो नमाज ना कायम करते हो, ला तुक़ामु फ़ीहिम सलात इल्ला क़द इस्तहवज़ अलैहिम शैतान, तो फरमाया कि ऐसे लोगों पर शैतान मुसल्लत हो जाता है। हज़रात गिरामी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के मुताल्लिक कितने सख्त थे। अल्लाह तबारक ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल लिल आलमीन कहा है कि ऐ नबी, हमने आपको पूरी जहान वालों के लिए, पूरी दुनिया वालों के लिए, ऐ नबी, हमने आपको रहमत बना करके भेजा है। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब कूड़ा डाला गया, आपने किसी को बद्दुआ नहीं दिया, आपके जिस्मों पर वो झिला करके डाल दिया गया, आपने किसी को बुरा भला नहीं कहा गया, आपने किसी को बुरा भला नहीं कहा, आपके रास्तों में कांटे बिछाए गए, आपने किसी को बुरा भला नहीं कहा, किसी को बद्दुआ नहीं दी। लेकिन जब नमाज की बात आई, ग़ज़वे तबूक के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुशरिकीन मक्का ने असर की नमाज से गाफिल कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए बद्दुआ की, और बड़ी बहुत जामे बद्दुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, शगलूना अनिस सलात यानी अलुस्ता मलअल्लाहु कुबूरहुम व बुयूतहुम। ऐ अल्लाह, इन लोगों ने मुझे नमाज से महरूम कर दिया, नमाज से मशगूल कर दिया। मलअल्लाहु कुबूरहुम व बुयूतहुम। ऐ अल्लाह, तू इनके कब्र को और इनके घरों को आग से भर दे। हज़रात गिरामी, बहुत ही जामे दुआ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसके खिलाफ बद्दुआ करें, वो बद्दुआ क्या है, कबूल ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। दुनिया के अंदर ऐसे लोगों को चैन और सुकून नहीं मिल सकता जो नमाज से दूर भागते, और आखिरत के मरने के बाद भी आपने फरमाया, मल अल्लाह व कुबूरहुम, ऐसे लोगों के घरों को अल्लाह तू क्या है, आग से भर दे, और ऐसे लोगों के कब्र को आग से भर दे। हजरात गिरामी, याद रखिए, अल्लाह के घर को वीरान करके अगर हम ये चाहें कि हम अपने घर को आबाद कर लेंगे, माफ कीजिएगा, हमारा घर कभी आबाद नहीं हो सकता। अल्लाह के घर को वीरान कर दें और हम ये चाहें कि अपने घर के अंदर हम खुशियां लेकर के आए, अपने घर को हम आबाद कर लें, तो माफ कीजिएगा हजरात गिरामी, हमारा घर आबाद नहीं हो सकता। तो नमाज ना पढ़ने का एक नुकसान ये है कि ऐसे लोगों पर शैतान मुसल्लत हो जाता है। हजरात गिरामी, इसी तरीके से नमाज ना पढ़ने का एक और नुकसान है, वो आदमी जो नमाज नहीं पढ़ता, ऐसे लोगों को अच्छी मौत नसीब नहीं होती। बड़े अफसोस की बात है, हम कितना गाफिल हैं नमाज से। हजरात गिरामी, दुनिया की तकलीफ से हम जब परेशान हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, तो कहते हैं बेहतर था कि मौत ही आ जाती, ताकि क्या है, इस परेशानी से, दुनिया की परेशानी से हम बच जाते। एक शायर कहता है कि आज घबरा के कहते हैं मर जाएंगे, मरने के बाद भी चैन नहीं आया तो फिर कहाँ जाएंगे।
इस दुनिया में भी अगर चैन नहीं मिला और मरने के बाद भी हमें सुकून नहीं मिला तो फिर कहां जाओगे? दुनिया सिर्फ दो ही है, मरने, एक ये जिंदगी और उसके बाद में एक और जिंदगी, उसके बाद में कोई और जिंदगी नहीं है। यहां पर अगर हमें क्या है सुकून नहीं मिला और यहां से फिर क्या दूसरी जिंदगी के अंदर फिर सुकून नहीं मिला तो मेरे भाइयों हम कहां जाएंगे? हजरत गिरामी, वो आदमी जो नमाज से दूर रहता, ऐसे लोगों को क्या है, ऐसे लोगों को अच्छी मौत नसीब नहीं होती। आपके सामने एक वाकया रखूं, कोयत का वाकया है। वहां से किताब शाये हुई, अरबी किताब है, उसका ट्रांसलेशन, किताब का नाम है अल्लाह का तकर्रुब कैसे हासिल करें, अल्लाह के तकर्रुब का हुसूल, ये किताब का नाम है। उस किताब के अंदर एक सच्चा वाकया जिक्र किया गया। वो आदमी एक नौजवान था, सुबह सवेरे निकलता है, बाइक पर सवार होता है, कान के अंदर एयरफोन है, गाना सुन रहा है, म्यूजिक। आज हमारा नौजवान भी बाइक जब चलाता है या कहीं और किसी और चीज पर क्या है सवार होता है तो हमारे कानों के अंदर एयरफोन लगे होते हैं, कहीं हम कुरान की आयत नहीं सुन रहे होते। उस एयरफोन के जरिए से हम अपने कानों को क्या है म्यूजिक की आवाज से क्या महसूस कर रहे होते हैं। वो नौजवान भी क्या है सुबह सवेरे निकलता है, बाइक पर सवार होता है, बड़ी तेजी के साथ बाइक को दौड़ाता हुआ उस रोड पर चलता है और अचानक क्या है वो गाड़ी हादसे का शिकार हो जाती है और वो नौजवान भी हादसे का शिकार हो जाता है। वहां की जो पुलिस थी वहां पर पहुंचती है, उस नौजवान के पास पहुंचती है और उसे ये तलकीन करती है कि बेटा ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो। वहां की चूंकि अरब की जो पुलिस होती है वो क्या है कुरान और सुन्नत से, कुरान और हदीस का उनके पास इल्म होता है। वो क्या है जब पहुंचे वहां, जब पुलिस की टीम जब पहुंची तो उस नौजवान को ये नसीहत कर रही, तलकीन कर रही थी कि ऐ नौजवान तुम्हारा क्या है मुलाकात अल्लाह से होने वाला है, तुम जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहे हो, ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो। उसने जो जवाब दिया वो हैरान करने वाला था। उसने कहा कि अब ला इलाहा इल्लल्लाह कहने से फायदा क्या है, जिंदगी भर अल्लाह के घर से दूर रहा, कुरान और सुन्नत की मुखालफत में मेरी जिंदगी गुजरी, अब ला इलाहा इल्लल्लाह कहने से फायदा क्या है? जरा तसव्वुर कीजिए मेरे भाइयों, वो आदमी जो नमाज से दूर रहता है, ऐसे लोगों को क्या है कभी भी उसको अच्छी मौत नहीं आ सकती। आप क्या है, आप बड़े बड़े हॉस्पिटलों का दौरा कीजिए और जाइए वहां पर विजिट कीजिए और देखिए वहां पर बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो क्या है दुनिया की मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला नजर आएंगे और वहां पर अक्सरियत ऐसे लोगों को आपको मिलेगी, जाकर के आप एक बार पूछिए लोगों से, ऐसे लोगों की अक्सरियत आपको दिखाई देगी जो क्या है नमाज से गफलत बरतते हैं, नमाज से दूर रहते हैं। हजरात गिरामी, तो नमाज से दूर रहने का एक नुकसान यह है कि उस आदमी को क्या है अच्छी मौत नसीब नहीं होती। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि इलाहुल आलमीन तो हमें अच्छी मौत नसीब अता फरमा और हमें इस दुनिया से जब तू बुला तो हम कुरान की तिलावत कर रहे हों और नमाज के अंदर मशगूल हों और तेरे कलमे को बुलंद कर रहे हों। आमीन। हजरात गिरामी, इसी तरीके से आपके सामने ये तो दुनियावी नुकसान हुआ, आखिरत के अंदर कुछ नुकसान है, उसको मैं आपके सामने बयान करके अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। जो आदमी नमाज से दूर रहता है, नमाज को तर्क कर देता है, क़यामत के दिन ऐसे लोग जलील और खार होंगे, ऐसे लोगों को ज़िल्लत नसीब होगी। सूरह कलम के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि यौम युक्शफ़ु अन साक़िन युदऊना इला सुजूदी फला यस्ततीऊन खाशियतन अबसारुहुम तरहकुहुम ज़िल्ला, कि कल कयामत के दिन अल्लाह तबारक ताला अपनी पिंडली को खोलेगा, वयुक्शफ़ु अन साक़िन वयुदऊना इला सुजूद, और लोगों को पुकारा जाएगा कि ये लोगों आओ तुम अपने रब को सजदा कर लो। दुनिया के अंदर तुमने क्या अपने रब को नहीं देखा, उसके बावजूद भी तुमने सजदा किया, आज तुम्हारा रब तुम्हारे सामने है, आओ अपने रब को सजदा कर लो। वो हजरात जो दुनिया के अंदर जिन्होंने दुनिया में अपने सर को क्या सजदे के अंदर रखा होगा, सजदा किया होगा, नमाजों की पाबंदी की होगी, ऐसे लोग क्या है अपने रब को सजदा कर पाएंगे। और वो लोग जिन्होंने दुनिया में रह करके नमाजों से दूर रहे होंगे, नमाजों को तर्क किया होगा, ऐसे लोग क्या लाख चाहने के बावजूद भी वो लोग सजदा नहीं कर पाएंगे। यौम युक्शफ़ु अन साक़िन वयुदऊना इला सुजूदी फला यस्ततीऊन, वो ताकत नहीं रख पाएंगे। व खाशियतन अबसारुहुम तरहकुहुम ज़िल्ला, ऐसे लोगों पर जिल्लत और रुसवाई तारी होगी।
परेशान होंगे, लाख चाहेंगे कि हम सजदा कर लें अपने रब को, अपने परवरदिगार के सामने झुक जाएं, लाख चाहने के बावजूद भी ऐसे लोग क्या है सजदा नहीं कर पाएंगे जिन्होंने दुनिया के अंदर क्या है सजदा नहीं किया होगा। हजरात गिरामी, तो पहला नुकसान यह है कि कयामत के दिन हमें जिल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ेगा। दूसरा नुकसान यह है कि कल कयामत के दिन वो आदमी जो अपने रब को दुनिया के अंदर सजदा नहीं किया होगा, अल्लाह तबारक ताला ऐसे लोगों पर क्या सख्त नाराज होगा। एक वाक़या में तबरानी की रवायत है, अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो कि मुफस्सिर कुरान हैं, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आंख की रोशनी चली गई, पूरी दुनिया उनको अंधेरे लगने लगी, आंख की रोशनी चली गई, दिखाई नहीं दे रहा है। आई स्पेशलिस्ट को बुलाया गया, जो आंखों का जो माहिर जो डॉक्टर होता है, तबीब होता है, ऐसे डॉक्टर को बुलाया गया। उस डॉक्टर ने आकर के अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को देखा और कहा कि मैं तुम्हारा इलाज कर दूंगा, ये ठीक हो जाएगा, लेकिन शर्त है कि तुम्हें क्या है नमाज से चंद रोज दूर रहना पड़ेगा, नमाज से दूर रहना पड़ेगा। अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि मुझे ऐसे इलाज की कोई ज़रूरत नहीं है जो अल्लाह के गज़ब का मुझे शिकार बना दे, ऐसे इलाज की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, मेरी आँख की रोशनी आए ना आए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन क्या है मुझे ऐसे इलाज की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने अल्लाह के रसूल गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन तरक सलाता, वो आदमी जिसने नमाज को छोड़ा, लक़ियल्लाहु अलैहि ग़ज़बान, जब वो आदमी अल्लाह से मुलाकात करेगा तो अल्लाह तबारक ताला ऐसे लोगों पर सख्त नाराज होगा। कहा मैं नहीं चाहता कि मैं अपने रब से मुलाकात करूं और मेरा रब मुझ पर नाराज हो। जाइए, उस डॉक्टर को वापस कर दिया। आज अपने मुआशरे पर नजर डालिए और देखिए, आदमी को क्या है, थोड़ा सा जुकाम हो जाए, सर्दी हो जाए, हम नमाज से गफलत बरतते, नमाज से दूर हो जाते हैं। हजरात गिरामी, तो एक नुकसान ये है कि क़यामत के दिन अल्लाह तबारक ताला क्या है ऐसे लोगों पर सख्त नाराज होगा। और मैं नौजवानों के लिए एक इबरतनाक वाक़या मैं आपके सामने रखूं। हजरत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने बच्चे की शादी करते हैं। अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने बेटे की शादी कर देते हैं। दुल्हन घर में आ गई। 3 दिन के बाद अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी बहू के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं, कैफ़ वजदते, कि ऐ मेरी बहू, तुमने मेरे बच्चे को, अपने शौहर को कैसा पाया? वो जो बच्ची थी, जो दुल्हन बन करके घर के अंदर आई थी, उसने जवाब दिया, कहा कि आपका जो बच्चा है, जो मेरा शौहर है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही नेक आदमी है, मुत्तकी और परहेजगार आदमी है। रात में वो अल्लाह की रज़ा के लिए नमाजें पढ़ते, तहज्जुद पढ़ते हैं, और दिन के अंदर क्या हर रोज नफली रोजा रखते हैं। 3 दिन हो गया, मेरे चेहरे को नहीं देखा। अल्लाह के रसूल गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भागते हुए गए और कहा कि अल्लाह के रसूल, उन्होंने सारे वाक़यात को, सारी बातों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बेटे को क्या है अपने पास बुलाया और कहा, तुम ऐसा क्यों करते हो? कहा कि अल्लाह के रसूल, अभी जवान हूँ, जिस्म के अंदर ताकत है, कुव्वत है, ऐ अल्लाह के रसूल हमें इबादत कर लेने दीजिए। हजरात गिरामी, कल के जो पेरेंट्स थे, कल के जो वालिदैन थे, ये इस बात की शिकायत करते थे कि अल्लाह के रसूल, मेरा बच्चा क्या है नमाज ज्यादा पढ़ता है, रोजा ज्यादा रखता है, उसको समझा दीजिए कि रोजा कम रखे। लेकिन अफसोस है, आज के जो पेरेंट्स हैं और आज के जो वालिदैन हैं, ये शिकायतें करते हैं कि मौलवी साहब क्या हमारे बच्चे को समझा दीजिए, रात भर क्या है फला चौराहे पर बैठा रहता है, रात भर वो मोबाइल देखता है, रात भर रील के अंदर मशगूल रहता है। हजरत गिरामी, क्या कभी हमने अपने बच्चे से ये कहा कि मेरे बच्चे तू उठ, तू जल्दी से क्या है सो जा, रात के अंदर तेरे को क्या है फजर के अंदर क्या है, फजर की नमाज क्या है, तुझको मेरे साथ अदा करना है? कभी हमने अपने बच्चों से ये जुमला कहा? हजरत गिरामी, तो सहाबे कराम की जिंदगी को पढ़िए और ये वाक़यात हमारे लिए इबरत हैं, हमारे लिए इसमें इबरत और नसीहत है। हजरत गिरामी, इसी तरीके से वो लोग जो नमाज नहीं पढ़ते, कयामत के दिन ऐसे लोगों के चेहरों को पत्थरों से मसला जाएगा, पत्थरों से कुचला जाएगा। हजरत समुरा बिन जुंदुब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी हदीस है, सही बुखारी की रवायत है, वो बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको फजर की नमाज पढ़ाते। फजर की नमाज पढ़ाने के बाद
हमारी तरफ मुतवज्जे होते और पूछते कि तुम में से अगर किसी ने ख्वाब देखा हो तो ख्वाब मुझे बताए, मैं उसकी ताबीर बयान कर दूं। लोग क्या है अपने अपने ख्वाब को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बयान करते और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके ख्वाब की ताबीर बयान करते। हजरत समरा बिन जुंदुब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि एक दिन ऐसा हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना ख्वाब बयान किया। कहा, है लोगों, आज मैंने ख्वाब देखा है कि मेरे पास दो फरिश्ते आए और उन फरिश्तों ने मेरे बाजुओं को पकड़ करके उठाकर बैठा दिया और कहा मेरे साथ चलिए। मैं उनके साथ गया। जब मैं एक जगह से गुजरा तो वहां पर रोने और चीखने और चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। मैंने उन फरिश्तों से पूछा ये किसकी आवाज है? कहा ये जहन्नमियों की आवाज है। कहा थोड़ा दूर और गए तो मैंने देखा कि एक आदमी चित लेटा हुआ है, चित लेटा हुआ है और उस आदमी के करीब उसके सर के बगल में एक आदमी बड़ा सा पत्थर लेकर के खड़ा हुआ है और मैं देखता हूं कि वो आदमी उस पत्थर से उस आदमी के सर पर पटक रहा है और वो उसका भेजा बाहर आ जाता है और वो पत्थर दूर लुढ़क करके चला जाता है और वो आदमी फिर जा करके क्या है उस पत्थर को उठा करके लेकर के आता है और उस पर फिर जोरदार से पटकता है और ये अजाब का जो सिलसिला है वो चलता रहता है। मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मैंने फरिश्तों से पूछा कि ये कौन लोग हैं, ये कौन आदमी है जिसके सर को पत्थरों से कुचला जा रहा है? तो उन फरिश्तों ने कहा कि ये वो आदमी है या नाम सलातिल मफरूजा, ये वो आदमी है जो जानता था कि नमाज फर्ज है, नमाज को तर्क करने पर गुनाह है, ये वो आदमी है जो नमाज से सोया रहता था। हजरात गिरामी, दुनिया के अंदर हमें अगर एक कांटा चुभ जाए तो उस कांटे की चुभन को दूर करने के लिए हम क्या हॉस्पिटल का सहारा लेते हैं और उसको हम बर्दाश्त नहीं कर पाते। कल कयामत के दिन जब पत्थरों से सर को कुचला जाएगा फिर हम उस अजाब को कैसे बर्दाश्त कर पाएंगे? हमें और आपको इसके बारे में गौर करना होगा। हजरात गिरामी, आखिरी बात कह करके मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। कुरान करीम आप पढ़िए, कुरान करीम के अंदर एक सूरत है सूरह मुदस्सिर जिसे कहा जाता है। अल्लाह तबारक ताला ने उस सूरत के अंदर जन्नतियों और जहन्नमियों का जिक्र किया है। जन्नतियों और जहन्नमियों का एक मुकालमा जिक्र किया है। जन्नती जन्नत के अंदर चले जाएंगे और जहन्नमी जहन्नम के अंदर चले जाएंगे। जन्नती क्या है, जहन्नमियों से सवाल करेंगे, पूछेंगे मा सलककुम फी सकर, कि बताओ तुमको किस जुर्म की वजह से यहां पर लाकर डाल दिया गया, कौन सा तुमने ऐसा खता कर दिया, कौन सा ऐसा तुमने गुनाह का काम कर दिया जिस गुनाह की बुनियाद पर तुमको इस जहन्नम के अंदर क्या डाल दिया गया। वो जहन्नमी बहुत सारा जवाब देंगे। उन जवाब में से जो पहला जो जवाब होगा वो यही होगा, कालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, कहेंगे हम नमाज नहीं पढ़ते थे, नमाज से दूर थे। कालू लम नकु मिनल मुसल्लीन वलम नकु नुतइमुल मिस्कीन, हम क्या मिस्कीनों को खाना नहीं खिलाते थे। बैठ करके वकुन्ना नखुज़ु माल खाइज़ीन, दुकानों पर बैठ करके, चौराहों पर खड़े होकर के बहस व मुबाहिसा करने वालों के साथ बहस व मुबाहिसा करते थे। मस्जिद के मनारों से अजान की आवाज आती थी, कानों से टकराती थी, लेकिन क्या है हमें तौफीक नहीं मिलता था कि क्या है मस्जिद का सहारा लें, मस्जिद के अंदर जाकर के नमाज पढ़ें। तो हम बहस व मुबाहिसा करने वालों के साथ बहस व मुबाहिसा करते थे और इसी तरीके से कयामत के दिन को झुठलाते थे। ये कहते थे कि ये जो मियाँ और ये मुल्ला और जो मौलवी ये जो बातें बयान करते हैं ये सिर्फ कहानियां हैं और कुछ नहीं है। और क्या है, हम ये भी तसव्वुर कर रखे थे कि फला बाबा क्या है हमें बचा लेगा, क्या है आज उसकी क्या है सिफारिश हमें काम नहीं आएगी, क्या है काम हमें नहीं आई। जाकर के क्या है सूरह मुदस्सिर आखिरी रुकू आप पढ़िए और खुद क्या है आप इबरत हासिल कीजिए। हजरात गिरामी, तो क्या है अल्लाह तबारक ताला ने इस मुकालमे को जिक्र किया है। जहन्नमियों का जो पहला जो जवाब होगा वो यही होगा कि दुनिया के अंदर हम नमाज नहीं पढ़ते थे, दुनिया की रंगीनियों में हम मशगूल थे। हजरात गिरामी, वो आदमी जो दुनिया के अंदर अपने आप को मुसलमान कहता हो, कल कयामत के दिन वो क्या है अल्लाह के बागियों के सफ में खड़ा हो, अल्लाह के दुश्मनों के सफ में खड़ा हो, इससे बढ़कर के जिल्लत और रुसवाई क्या हो सकती है। हजरत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के रसूल गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन नमाज का जिक्र किया और कहा कि वो आदमी जो नमाज की हिफाजत करता है, मन हाफ़ज़ा अलैहा, कयामत के दिन ये नमाज उसके लिए क्या है नजात का जरिया बन जाएगी, ऐसे लोगों के लिए नूर और रोशनी बन जाएगी। और वो आदमी जो नमाज की पाबंदी नहीं करता, नमाज से दूर भागता है, वो आदमी कयामत के दिन फिरौन के कारून के साथ होगा, फिरौन के साथ होगा, हामान के साथ होगा और उबई इब्न खलफ के साथ होगा। दुनिया के अंदर हमने अपने आप को मुसलमान कहा, अब्दुल्ला और अब्दुर्रहमान नाम रखा, लेकिन अफसोस की बात कल क़यामत के दिन वो आदमी जो नमाज नहीं पढ़ता, कल क्या है फिरौन और कारून और हामान और उबई इब्न खलफ के सफ़ों में जाकर के खड़ा होगा।
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, ہم اور آپ اس کو جھوٹا نہیں کہہ سکتے. حضرات گرامی, ہمارے لیے اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ ہم اور آپ کیا ہے نماز کی پابندی کریں. نماز کے ذریعے سے ہماری زندگی میں خوشی آ سکتی ہے اور دنیا کی ذلت اور رسوائی سے ہم اور آپ بچ سکتے ہیں, اور کل قیامت کے دن بھی کیا ہے یہ نماز کیا ہے ہمیں ان تمام ذلت اور رسوائیوں سے بچا کر کے کیا ہے جنت کے اندر داخل کرا دے گی. اور قیامت کے دن جو سب سے پہلا جو سوال ہوگا وہ نماز کے متعلق ہوگا. اگر آدمی کیا ہے اس میں اگر کامیاب ہو گیا تو کیا ہے وہ کامیاب ہو جائے گا, لیکن اگر کیا ہے اس میں اگر وہ ناکام رہا تو پھر کیا ہے اس میں اس کے لیے کیا فقط خواب و خسرہ, وہ آدمی کیا ہے خائب و خاسر ہوگا, خسارہ اٹھانے والا ہوگا. حضرت گرامی کی وہ چند باتیں تھیں قرآن اور حدیث کے حوالے سے آپ کے سامنے باتیں کی گئیں. اللہ تبارک تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین تو ہم تمام لوگوں کو نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین تو ہم تمام لوگوں کو فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل سنن کی بھی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار عالم تو ہمیں اس دنیا کے اندر جب تک زندہ رکھ, ایمان پر اسلام پر زندہ رکھ, اور اگر ہماری خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو, اسلام پر ہو. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.